Discussion would be based on construction and its construction of a portfolio and its execution. So we will be in today's class working on how to construct a portfolio and then how to move ahead in that. So the topic is construction. First we will construct the portfolio and its execution. So you can say boldly portfolio construction. The great portfolio management thinker, the finance personality Markowitz, who gave the theory of risk and return on portfolio. He was the person who went on to say that there is a systematic risk, mean risk, as well as mean value. So this person went on to say that when you are making a portfolio, don't make a portfolio by putting all the money in one area. That's why the famous statement is, don't put all eggs in one basket. Don't put all eggs in one basket. So this is the famous statement made by Markowitz. Do not put all eggs. Eggs means finance, that your all money, what you are having. One basket means one area, one company, one industry, wherever. It says that the first mantra of any kind of investment is, do not put all eggs in one basket. Means Sara paisa, whole of the money which you are having, do not go for investing in one company. It means invest in more than 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, whatever you can enlarge. So invest in all those different segment companies. So that will be your portfolio. So portfolio construction, investing your money in different aspects of industry, different companies of across industries. Like if I say that if you take industry, banking, and you invest in banking, SBI, HDFC, then Axis Bank, then PNB, you are investing, you had 1000 rupees. You are investing 500, 300, 200, 100 and 100. So you invested your whole 1000 rupees in one industry. You will say, sir, companies are different, but industry is same. If tomorrow something otherwise happened to banking industry, everything would be collapsed. So your whole money would be at high risk. So when Markowitz says do not put all eggs in one basket, it doesn't mean only one company. पहले तो सारा ही SBI में लगा दिया. Then going for only one industry, that is called banking. सारा banking में भी नहीं लगाना है. It means across companies, across portfolio, across industries. That is called diversified industries and across companies. सो इंडस्ट्रीज अलग अलग चूज करें, उसके बाद उसके अंदर कंपनीज अलग अलग चूज करें, फिर अपना पोर्टफोलियो बनाएं. इसके लिए वट एवर वी हैव डिस्कस्ड बिफोर दिस स्टेप नंबर 3 इन दिस केस व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट एनालिसिस, अंडरटेक एनालिसिस. Two analysis we did, that was fundamental and technical, which we have discussed in our earlier class. Before you are going to go for portfolio construction, ask a few questions to yourself. Those few questions would be, number 1, which sectors to invest in? That is called industries. Sectors, industries. So EIC framework, economy, industry. So go for identifying various industries which are fruitful tomorrow, beneficial tomorrow. And then once industries are identified, then under the industry there will be so many companies. Like if I spoke about banking industry, I talked SBI, HDFC, Axis, PNB, there will be Yes Bank and many more banks. Which bank would be fine for you to invest? That will be fundamental analysis of company. Then similarly take pharma. सिप्ला लेना है, लुपिन लेना है, फाइजर लेना है, अबर्ट लेना है. Which company will you take? Go for analysis. Then go for metal, go for energy. This way diversified sectors and then diversified securities. Here you have to ensure also one thing, that is called when to enter, when to exit.
कब शेयर को परचेज करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए. सो मोस्ट लाइकली टेक्निकल एनालिसिस डू लेट यू नो बाय गिविंग देयर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चार्ट्स एंड अदर्स. सो दे विल लेट यू नो कब एंट्री होनी चाहिए, कब एग्जिट होनी चाहिए. सो दिस इज व्हेन यू आर बाइंग मेकिंग अ पोर्टफोलियो, योर मेजर क्वेरी इज ओके सेक्टर तो पता चल गया, कंपनी भी पता चल गई, अभी परचेज करूं या बाद में परचेज करूं. बिकॉज आई एम जनरली अफ्रेड इफ आई डोंट बाय टुडे द प्राइसेस विल गो हाई. If I buy that time, then prices would come down. I still remember, I'll give you an example of Tata Chemicals. I bought Tata Chemicals at 536. 20 shares of Tata Chemicals, 30 shares. Now Tata Chemicals is 813 rupees, today's price. It has gone 300 increase during 3-4 months. Now I am thinking whether I should invest my more money in Tata Chemicals or not, because it is believed that they will grow more, because that is an initial stage and I caught it very early. So now identifying when I should enter into particular stock, that is a question to ponder over. So that question sometimes are answered by technical analysis. Then we have and how to study the sectors. We have already discussed that studying the sectors, industry, economy will be a part of your fundamental analysis. Next question in portfolio construction would be how best to combine in a way that risk is reduced in a minimum for a given level of expected return. Like मैंने बैंकिंग लिया, वन बैंकिंग उठा लिया, अनदर के साथ प्लस किया मैंने फार्मा के साथ मैंने बैंकिंग लिया, फार्मा प्लस कर लिया, मैंने मेटल ले लिया, फिर मैंने केमिकल ले लिया. सो आई टुक 4 सेक्टर्स. नाउ इन दीज 4 सेक्टर्स, इन चारों का कंबाइंड टोटल वेरिएंस, टोटल रिस्क कितना होगा. नंबर 1 आई हैव टू थिंक चारों का कंबाइंड रिटर्न, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, वो कितना होगा, विल बी मेड टुगेदर. And then I will be able to analyze whether my portfolio is giving me the best returns or not. And second comes when you go for portfolio construction, you have to look at the few components which will make it as execution. कब execute होगा. Number 1 point, when you are going for looking at the portfolio, look at the components. कौन से सेक्टर को स्टडी करना है, कौन सी कंपनी को स्टडी करना है, कब एक कंपनी में एंटर करना है, कब एक कंपनी से बाहर जाना है. सो दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन. अब सेक्टर्स टू लुक इन, कौन कौन से सेक्टर्स लेने चाहिए. फेमस इन्वेस्टर वारेन बफेट सेज दैट ओनली डू वन थिंग, क्लोज द डोर्स, just sit in a room and be fearless when people are greedy, and when people are fearful you become greedy. It means just go for reverse, taking a reverse position. What people are doing, you just do opposite, but make sure that your eyes are open, you are understanding the fundamentals, why people are doing so, and then accordingly you take a call. So which sectors to look in. जैसे मैं आजकल somebody, I was talking with someone, I was sharing right now second wave of corona is making people afraid. Again you will find the stocks of hotels, all hotels, then all tickets और touring companies, tourism and travel जिसे हम बोलते हैं, and its related industries. You will find like airline, you will find अगर second wave of corona comes, will come down, prices will be down. Now many people would start selling the stocks. Now how long will this downfall wave would stay? You have to think otherwise. People are selling and you have to buy. Make sure जब कोई सेल करता है तो कोई ना कोई तो बाय कर रहा होता है. सो ट्रेड तो तभी होगा when one is selling, one is buying. So या तो सेल करने वाला मूर्ख है या बाय करने वाला मूर्ख है. Now if I am saying hotels and tickets and airline industry, if it is people are selling the shares of this industry, guys, then who is buying and why buying? If you are thinking one way around, that why that person isn't thinking like you, वो तो डिफरेंट सोच रहा है. वो डिफरेंट क्यों सोच रहा है? माइट बी दैट दिस वेव विल गो ओवर विद इन 1 or 2 years, then the same stocks will go up, and when these stocks will go up, they will shoot like anything.
So which sector to watch, how to watch, this is the point of thinking when you are going for execution of your portfolio. Then once it is done, then you have to ensure performance, operating performance क्या है, ability to handle क्या है. जैसे मैंने आपसे बोला जी ये टूरिज्म एंड ट्रेवल, एयरलाइन इंडस्ट्री, सपोज करें मैंने इंडिगो में लगाया, इंडिगो डिड स्टे एंड फ्यूचर लॉन्ग टर्म 2-3 साल का लॉस होता है, वो फिर भी मैनेज कर जाते हैं. बट कई ऐसे भी हैं जो उड़ गए, एयरलाइन इंडस्ट्री ही खत्म हो गई, किंगफिशर जैसे, वो लोग मैनेज ही नहीं कर पाए. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस सेक्टर में किस तरीके से, एंड वेदर दे विल बी एबल टू मीट द फ्यूचर चैलेंजेस. लाइक सपोज करें इफ दे हैव टू सिट आइडल फॉर अनदर 1 ईयर, विल दे बी एबल टू सर्वाइव, विल दैट कंपनी बी एबल टू बी देयर, और कहीं बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगी. इफ दैट हैपेंड, योर होल ऑफ द मनी वुड गो, अदरवाइज you will be at loss. And similarly then you have to identify that कौन कौन से परफॉर्मिंग कंसिस्टेंस हैं, डाउन हो रहे हैं बट स्टे कर रहे हैं मार्केट में. एंड इफ देयर इज अ डाउनफॉल बट स्टिल दे आर देयर इन द मार्केट, इट मीन्स दैट दे विल क्रॉस दिस बैड पीरियड ऑफ बिजनेस. एंड अनदर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन इज प्रायोरिटाइज करें कंपोनेंट्स को, किस स्टेप को पहले लेना है, किसको बाद में लेना है, किसका रैंक 1, 2, 3, 4 होगा. लाइक व्हेन यू आर गोइंग फॉर, आई एम सेइंग आई वुड इन्वेस्ट इन केमिकल, मेटल, फार्मा एंड बैंकिंग. रैंकिंग कैसे बनाऊंगा, विच कंपनी टू बाय फर्स्ट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, मीन्स आई हैव टू प्रायोरिटाइज द एग्जीक्यूशन दैट वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई मनी, एंड अकॉर्डिंगली दैट व्हेन आई पुट माई मनी आई हैव टू इंश्योर दैट ओके दिस वे आई हैव टू इन्वेस्ट. कि अगर मेरे पास ability I got a chance, so I will first invest in banking, then I will invest in pharma, then I will invest in metal, and after that I will invest in chemical. So this way you have to go for constructing your portfolio, and then once you are constructed with your portfolio, keep on revising. This is the next step of your portfolio construction. So when you are going to go for your portfolio revision, you have to review the portfolio. Review the portfolio means you have to look various aspects of your portfolio. Review the portfolio. Now there are many people, those who say it is one time process. पैसा लगा दिया, बात खत्म हो गई, that's all. अब हमें इसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है. बट द प्राइसेस ऑफ द कंपनी आर फ्लक्चुएटिंग. यू कांट जस्ट सिंपली इन्वेस्ट योर मनी एंड सिट आइडल. दैट इज द रीजन पीपल डू प्रेफर अदर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. रियल एस्टेट में लगा दिया, छोड़ दिया, ठीक है, वी विल सी इट लेटर ऑन. बट यू कांट डू द सेम इन द स्टॉक मार्केट. इफ यू आर गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ फीचर इन द स्टॉक मार्केट, यू हैव टू कीप ऑन हैव एन आई कि कहीं कंपनी बंद तो नहीं हो रही, एडवर्स सिचुएशन तो नहीं आ गई, कहीं अदरवाइज इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा, मार्केट के अंदर डायनामिक्स चेंज तो नहीं हो रहे. यू हैव टू लुक एवरीथिंग. अगर वो मार्केट में बिजनेस ही इलीगल हो गया, क्या करेंगे, कंपनी तो क्लोज हो जाएगी. सो दिस वे यू हैव टू कीप ऑन रिव्यूइंग द पोर्टफोलियो. हियर इज अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेट एंड फॉरगेट. गोल बनाया, पैसा लगाया, सेट किया और फॉरगेट हो गए, आई एम सॉरी, यू विल बी एट लॉस. नेक्स्ट इज यू हैव टू इंश्योर पीरियोडिकली देखो, एनुअली देखो, अपना मंथली देखो, फोर्टनाइटली देखो, वीकली देखो. कीप ऑन लुकिंग एट, कीप ऑन अटैच्ड व्हाट इज हैपनिंग. जिसमें मैंने पैसा लगाया है, क्या उन कंपनीज का मूवमेंट, उनके कॉर्पोरेट एक्शंस, क्या वो ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे. आर दे गोइंग टू टेक एनी एडवर्स सिचुएशन, एडवर्स डिसीजन जो आपको सूट ना करे, दैट में गो फॉर कंपनी पुटिंग इनटू द लॉसेस. देन अनदर पॉइंट इज यू हैव टू इंश्योर, मैंने पहले भी कहा था, जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, बिकॉज अनसर्टेनिटी इज नथिंग बट इट इज रिस्क. Longer the uncertainty means time frame. If it is 5 years time frame, you don't know what will happen in the 5 years. 2 years time frame, you will say हाँ ठीक है, 2 years को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बट 5 साल से इजीली इफेक्ट हो आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, बट आई कांट गो फॉर 5 years. मीन कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ 2 years इज ईजी देन द 5 years. एंड इफ आई से 1 year, judgment about the performance of the company as compared to 2 year is easy as compared to 1 year, because 1 year में मैं जल्दी उसे आइडेंटिफाई कर लूंगा. So uncertainty longer the risk.
and if your portfolio is for the long period, you have to ensure, keep on reviewing, revisioning, performance check. This is very much essential for your portfolio investment. That is called investment management process का अहम part है. This is very very important aspect. Then I say, when you are taking, make sure that when you are taking डिसीजन अबाउट द रिव्यूइंग, चेक करो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम स्पेस, फिजिकल स्पेस पे बिजनेस करते थे. नाउ वी आर डूइंग डिजिटल स्पेस. Those who entered early, they entered and made their presence early. Those who entered late, they made their presence late. So टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है. आपके पोर्टफोलियो में वो कंपनी है जिसने टेक्नोलॉजी चेंज के साथ अडेप्टेबिलिटी किया है. इनोवेशन आया, क्या आपकी कंपनी ने भी उसके साथ इनोवेट किया कि नहीं किया. सिमिलरली इफ यू रिमेंबर दोज गाइज हु इन्वेस्टेड इन नोकिया, सैमसंग के एग्जाम्पल्स आप ले लीजिए. सैमसंग केप्ट ऑन चेंजिंग दी innovational part. Samsung brought 2 SIM card mobile. Nokia could not. Slowly and slowly you all know that the one who taught us how to operate mobile is vanished. आज उसको हम Microsoft बोलते हैं. क्यों? क्योंकि उसने इनोवेशन के साथ चेंज नहीं किया. सो इट मीन्स इफ यू हैव परचेज्ड द शेयर्स ऑफ नोकिया एंड यू डिड नॉट लुक एट कि धीरे धीरे इनके साथ क्या हो रहा है, व्हाट आर दे डूइंग, एंड अकॉर्डिंगली यू विल गो आउट. So there are few checklists when you are reviewing the portfolio. I'm just going for identify आपके income stocks कौन से हैं, आपके growth stocks कौन से हैं. Income stocks means जिनसे आपको regular dividend आ रहा है, monthly, yearly dividend आएगा वैसे तो आपको कितनी income हो रही है. Growth, किन के share prices grow कर रहे हैं, आपके portfolio का balance क्या है. Checklist number 2, उनकी मेच्योरिटी डेट्स क्या हैं. इफ इट इज इक्विटी तो मेच्योरिटी आपके हाथ में. इफ इट इज म्यूचुअल फंड सेट डेट वाला है तो मेच्योरिटी उनके हाथ में है. ओपन एंडेड है तो मेच्योरिटी आपके हाथ में है. पोस्ट ऑफिस, बैंक्स एंड अदर एस्पेक्ट्स, मेच्योरिटी कब पैसा कब रिसीव हो रहा है. थर्ड चेकलिस्ट, क्रेडिट प्रोफाइल, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. उसमें आप पैसा लगा रहे हो, कितना लॉन्ग वो स्टे कर रहा है, कितना लॉन्ग वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस उस कंपनी की बनी हुई है. चेकलिस्ट नंबर 4, सेक्टोरल ब्रेकडाउन ऑफ इक्विटी एसेट्स. जैसे मैंने बताया, आपने 4 में डाला अपना पैसा, 4 सेक्टर्स में क्यों डाला. डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. इट मींस आपने कौन कौन से सेक्टर्स में पैसा लगाया है, एंड आर दी सेक्टर्स ग्रोइंग. Checklist number 5, how many equity investments, how many, I am talking about number, मतलब कितनी कंपनीज में लगाया हुआ है. 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं. जितनी ज़्यादा होंगी उतना आपको बेनिफिट रहेगा. नेक्स्ट इज रिस्क एक्सपोजर. जैसे मैंने बोला अनसर्टेनिटी. इन चारों को मिलाकर के कितना रिस्क का लेवल है आपका, इज इट लेस, इज इट मोर. तो उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो, आप कंजर्वेटिव हैं तो लेस रिस्क होना चाहिए, आप रिस्क न्यूट्रल हैं तो एवरेज रिस्क होगा, रिस्क टेकर हैं तो हाई रिस्क होगा. सो आपके पोर्टफोलियो का मीन रिटर्न क्या है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक रिस्क क्या है. देन आपका कौन कौन सी कंपनीज में पैसा लगा हुआ है. इफ यू आर इक्विटी इन्वेस्टर, स्मॉल कैप में है, मिड कैप में है, लार्ज कैप में है, या तीनों में कॉम्बिनेशन है. आइडियल वुड भी तीनों का कॉम्बिनेशन. इट मींस लार्ज कैप में लगा हुआ है, स्मॉल में है, मिड में है, कोई ग्रो कर रही है, कोई ग्रो हो चुकी है, किसी ने ग्रोथ पैटर्न स्टार्ट किया है. दिस वे योर इन्वेस्टमेंट्स विल मल्टीप्लाई. सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आपका बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो, इन्वेस्टेड इन ऑल 3 काइंड्स ऑफ कैपिटलाइजेशन कंपनीज. एंड नेक्स्ट चेकलिस्ट इज आपकी प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है. प्राइस अर्निंग, जितना रुपया पर शेयर एक कंपनी कमा रही है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस इन द मार्केट. इफ सपोज आई से टाटा मोटर्स ने 5 रुपये पर शेयर कमाया मार्केट में, उसके 5 रुपये पर शेयर से 50 रुपीज़ पर शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ. प्राइस अर्निंग रेशो आपके पोर्टफोलियो का अक्रॉस दी कंपनीज प्राइस अर्निंग रेशो कैसे जा रहा है, यू हैव टू इंश्योर अबाउट इट. एंड नेक्स्ट चेकलिस्ट इज द क्वालिटी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स. दैट आर दोज कंपनीज वैल्यू कंपनीज, ग्रोथ कंपनीज, बैंकरप्ट. कई बार क्या होता है, यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी विदाउट लुकिंग वेदर हु इज द पर्सन रनिंग दिस, एंड कम टू नो दैट वन डे वो पैसा ही खत्म हो गया.
सो इस तरीके से जो कंपनीज जिनमें दोज हु ग्रो वेरी फास्टर एंड देन वेनिशेज अवे, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न इन टर्म ऑफ रिव्यूइंग देयर पोर्टफोलियो. सो व्हेन यू आर रिव्यूइंग, क्योंकि रिव्यू करने से क्या होगा, योर रिव्यू विल गो फॉर इवैल्यूएटिंग द पोर्टफोलियो. क्यों? क्योंकि आपने पोर्टफोलियो देखते जा रहे हो, क्वेश्चंस देखते जा रहे हो, चेकलिस्ट डालते जा रहे हो. व्हेन यू आर डूइंग इवैल्यूएशन, चेकलिस्ट, क्वेश्चंस, तो ये सारी जब चीजें आपने डाली, so you will ultimately take a decision whether I should go for revising it, means क्या मुझे इसमें कोई चेंज करना है. तो जब आप चेंज करोगे तो you will go for evaluate the performance, वो हमने रिव्यू में कर लिया, और उसके बाद उसको क्या कर दोगे, एंड यू विल मेक अ रिवीजन. रिवीजन का मतलब क्या है, दैट यू विल चेंज समथिंग. चेंज का मतलब एक कंपनी छोड़ोगे, दूसरी लेके आओगे. जो सही परफॉर्म नहीं कर रही, दोज फंडामेंटल्स आर पुअर, दोज ड्यू टू टेक्नोलॉजी दे आर गेटिंग आउट, इट मीन्स देयर इज दी सम इश्यूज कमिंग विद द कंपनी एंड द कंपनी इज नॉट एबल टू हैंडल दोज इश्यूज. एंड इफ दे आर नॉट हैंडलिंग, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, दे शुड बी आउट. And those who have started performing, they should be in. Like 3-4 years back, Adani Group को बहुत very few people used to know about it. Now Adani is the largest performer these days. So this company segment is growing like anything, and earlier aspect was different. So when these things are there, you have to evaluate कि इसको exclude करूँ, इसको include करूँ. So over the period, one has to ensure which is growing, which is not growing, and how they are moving further. So this way one has to go for going the reviewing and then revising. So revision में basically हम क्या फैक्टर देख रहे हैं, सेक्टर चेंज तो नहीं हो गया, सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी कम तो नहीं हो गई, उस सेक्टर के अंदर विच कंपनी वी हैव इन्वेस्टेड, क्या उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट से अब हमें उससे रिटर्न तो कम आएगी, क्या उसके साथ उसका प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है. फॉर एग्जाम्पल, नीरव मोदी, पीएनबी में 10,000 करोड़ का घोटाला होता है, मार्केट में पीएनबी का शेयर गिर जाता है. सो अगर वो मार्केट में पीएनबी का शेयर गिरता है, हमें पता है कि इतना लॉस हो गया, अब इस लॉस को रिकवर करते हुए पीएनबी विल टेक टाइम. सो कहीं तो दे विल बी थिंकिंग सम ग्रोथ डिसीजंस, कहीं वो ग्रोथ डिसीजंस ना सोच करके दे आर गोइंग टू कवर द लॉस डिसीजंस, किस तरीके से मैनेज करें. सिमिलरली येस बैंक, अ होल टम्बल्ड डाउन. Now, wherever they would think about how to grow in future, they have to think how to survive today. So, सारी की सारी आपकी जो strategy है, that got a change. So, when these things get a change, there is a problem for the company to grow. So, आपको क्या करना पड़ेगा? You have to take a call. टेक अ कॉल मीन्स यू हैव टू टेक अ डिसीजन. क्या मुझे इसको आउट करके लेके आना है, नई कंपनी को लेके आना है, इस परफॉर्मर को हटाना है, इस परफॉर्मर को लेके आना है. सो दिस वे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस लास्ट स्टेप वुड बी रिवाइजिंग योर पोर्टफोलियो. सो नटशेल, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, यू हैव टू सेट योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कि मैं पैसा क्यों लगा रहा हूँ, व्हाई एम आई इन्वेस्टिंग माई मनी. एंड वंस यू हैव डिसाइडेड अबाउट दैट, ओके आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी बिकॉज ऑफ दिस, देन सेकेंड comes that what is the policy, how will you make your road map, move कैसे करोगे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. once you have decided that मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, मैं कौन सा इन्वेस्टर हूँ, रिस्क टेकिंग हूँ, रिस्क न्यूट्रल हूँ, once I have decided this, then I will go for analyzing the security कि मुझे कौन सी सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहिए. एनालाइज करना है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस. जब मेरी सिक्योरिटी का एनालिसिस होगा, फिर मैं उसके ऊपर पोर्टफोलियो बनाऊंगा. दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोर्टफोलियो. सेक्टर्स लूंगा, फैक्टर्स लूंगा, रिव्यू करूंगा, फैक्टर्स और सेक्टर्स लेकर के उसमें मैं मार्कोविज का फॉर्मूला, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. आई विल मेक माई पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बाद आई विल कीप ऑन चेकिंग द पोर्टफोलियो. दैट इज कॉल्ड रिव्यूइंग द पोर्टफोलियो. आई हैव बीन रिव्यूइंग इट, आइडेंटिफाइंग कि इसमें ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, दिस कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग like this. It means कि आप कहें कि I have invested and I am going to forget, I am not going to check about the company, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, that will be the troublesome. So you have to have an eye on that company. It means review करें. After the review, go for revision. That you need to change that. Then if you need to change, keep on changing and then revising your portfolio so that your portfolio would be an optimal portfolio. Optimal word आ गया यहाँ पर. Optimal क्या होता है?
ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, ऑप्टिमल मीन्स मैक्सिमम रिटर्न जितनी उसमें से आ सकती है, सो मैक्सिमम रिटर्न जितनी आ सकती है एंड मिनिमम रिस्क, सो आई वांट माय रिटर्न्स that is called maximum and my risk that is called minimum. So if this is the scenario, I can make it, my portfolio will be an optimal portfolio. So this way I will go for making my portfolio optimum after following investment management process. So those guys who would really like to invest their money in investment, first make sure these all questions. Number one, आप कैसे, आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्यों मार्केट में आना चाहते हो, शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन, इनका टैक्स इंप्लीकेशन भी याद रखिएगा, क्योंकि जितना कमाओगे शॉर्ट टर्म है तो 15% कैपिटल गेन में चला जाएगा, उसमें से खर्चे भी माइनस होंगे। सो वो टैक्स एस्पेक्ट क्या है वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का एक पार्ट रहेगा। सो पहला क्वेश्चन, दूसरा आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, तीसरा क्या आपको एनालिसिस करना आता है, या रात को उठे सब सोए थे, सपने में बाबा जी आए एंड यू बाबा जी सेड कि भैया ऐसा करो फलानी में लगा दो, तुमने लगा दिया, सुबह वो पैसा डूब गया, या महीने बाद 2 महीने बाद वो पैसा डूब गया। प्लीज डोंट डू, एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें, इवैल्यूएट करने के बाद पैसा लगाएं। आई ऑलवेज गो फॉर सेइंग दिस कि हम रूटीन लाइफ में वी टॉक अबाउट, केयर अबाउट, हर पैसे की 100 रुपए की, 500 रुपए की कद्र करते हैं। वी इन्वेस्ट वेयर, या वहां कंज्यूम करते हैं जहां से रिटर्न मिले। मार्केट में ऐसा करना चाहिए, बिकॉज अगर मार्केट में ऐसा नहीं करेंगे पैसा डूब जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद नथिंग जस्ट टू अब्यूज द अदर्स. So that will not be a solution, money will not come to us. So from my side, this is about your investment management process. If you have any queries, you can ask me. Thank you very much.